Very warm welcome to all of you. It has been a while I have interacted with all of you. I would like to congratulate Team India for their wonderful performance in England. India are 2-1 up and I am sure we will do well in fifth test. They have shown remarkable character and made everyone proud. I shall now announce India's squad for ICC Men T20 World Cup 2021, which will be hosted by BCCI and will take place in UAE and Oman from October 17 to 14th of November this year. The selection committee meeting was attended by 5 selectors and Team India captain Mr. Virat Kohli, who joined from Manchester. India's World Cup squad is as following: Virat Kohli captain, Rohit Sharma vice captain, KL Rahul, Surya Kumar Yadav, Rishabh Pant wicketkeeper, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Jasprit Bumrah, Bhuvneshwar Kumar, Mohammad Shami, Ravish Chandra Ashwin, Akshar Patel, Ishan Kishan, Rahul Chahar and Varun Chakravarti. And as far as standby is concerned, we selected 3 players: Shreyas Iyer, Deepak Chahar and Shardul Thakur. There is one announcement to make, that Mr. Mahendra Singh Dhoni will be joining Team India as team mentor for upcoming T20 World Cup. I am glad that MS has accepted BCCI's offer and he is keen to contribute to the national team once again. MS will work closely with Mr. Ravi Shastri as well as other support staff to provide support and direction to Team India. And as far as question answer is concerned, Mr. Chetan Sharma is here, so he will answer your question. Dear all, we will now take questions about the India squad which has just been announced. Kindly raise hand and wait for your turn. And remember, this is a squad announcement press conference, so we will keep our questions limited to the upcoming T20 World Cup. Hi sir, if you can hear me, Dipanshu from News Portal. मैं चाहता हूँ जानना कि युजवेंद्र चहल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस स्क्वाड में ऊपर हमने कितना दिया? जी बिल्कुल, युजवेंद्र चहल के ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ और यही सिलेक्टर्स की सोच थी कि इस समय आपको कोई गेंदबाज चाहिए जो थोड़ा तेज़ गेंदबाजी करे, और इसलिए जैसे हमने रिसेंटली देखा है राहुल चहर को गेंदबाजी करते हुए, जिस स्पीड के साथ वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो सिलेक्टर्स की यही सोच थी कि हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो उन विकेट्स के ऊपर थोड़ा पकड़ बने और स्पीड थोड़ा ज़्यादा हो। तो इसलिए चहल के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुआ, लेकिन इसलिए हम लोग राहुल चहर के ऊपर बात किया। Please wait for your turn and let me call out your name if you have to ask a question. Hussain Sarfaj. Yes, a question to the secretary and also to the chairman of selectors, that what is like, how much did it take for you to convince Mr. Dhoni to become the team mentor, and what was the idea? Like, this is a surprise. So if you could just tell us, like, what was the idea? Was any discussion between secretary and the captain or the head coach? Like, थोड़ा सा विजय भाई हमें पता है कैसा हुआ? That question I will answer you later. First of all, you please ask a question related selection only. Chetan bhai, what was the logic behind selecting Ravichandran Ashwin after 4 years in white ball cricket? You would give us. देखिए, रविचंद्र अश्विन रेगुलरली आईपीएल खेल रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि कितना अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, और डेफिनेटली वर्ल्ड कप के अंदर जब हम लोग जाते हैं आपको एक ऑफ स्पिनर की बहुत ज़रूरत है। और जैसे सबको आइडिया है कि दुबई और यूएई के अंदर जब आईपीएल का लेटर हाफ होगा तो विकेट्स माइट बी लो एंड स्लो एंड स्पिनर्स को मदद करेगी, तो एक ऑफ स्पिनर टीम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड लिस्ट में चल रहे हैं और अश्विन एक एसेट है टीम के लिए, और आईपीएल में जैसा प्रदर्शन उन्होंने किया इसीलिए उनको टीम में जगह मिली है आज। Can you please talk about the set of all-rounders that you have in team, and what kind of how did you kind of arrive at the balance of the squad, keeping in mind all the players?
But definitely, because T20 is all about the all-rounders, and that's why we actually tried and packed up the team with the all-rounders. We have Ravindra Jadeja, we have Hardik Pandya, we have Akshay Patel. So that was the main point. Ki, if with a chance the wickets are turning, then you have Akshay and Jadeja with you, and then Hardik Pandya is one of the leading all-rounders India have. So main aim was just to look into the T20 cricket and pack the team with the all-rounders. Among that, point adequacy. शर्मा जी, वो स्टैंड बाय टीम नहीं रखना ये कितना डिफिकल्ट डिसीजन था, कंसीडरिंग ये सब जो सिचुएशन चल रहा है और ओवरऑल पिछले साल भर में इतना लिमिटेड क्रिकेट हो रहा है, बहुत कम लोग देखने के लिए मिल रहे हैं, या T20 के लिए अब थोड़ा ज्यादा आसान था क्योंकि आपको आईपीएल और बाकी सब थोड़ा ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं? डेफिनेटली देखिए आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लेयर्स खेलते हैं, तो आपको एक परफॉर्मेंस प्लेयर का मालूम पड़ता है। और देखिए जैसे जैसे समय अच्छा होगा तो आपको ये डिफिकल्ट टाइम्स आएंगे, आपको 20 की जगह 15 का टीम बनाना पड़ेगा, आपको स्टैंड बाइज कम करने पड़ेंगे। तो ये जो स्टैंड बाइज आए हैं बेसिकली वो मद्देनजर रखते हुए हमने स्टैंड बाइज दिए कि विद ए चांस कहीं इंजरी होती है कहीं भी तो आपके वही स्टैंड बाइज रखे गए हैं इसमें। Ketan sir, my question is about Shreyas being in the standby. Is it a concern कि वो जो इंजरी के बाद और जिस तरह से सूर्या ने अपनी प्लेस टीम में जो जगह बनाई है? देखिए सुरेश का ही इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर एंड काफ़ी समय से जब आप क्रिकेट से दूर रहते हैं तो इवन सेलेक्टर्स का भी थोड़ा रिजर्वेशन रहता है, बिकॉज इसलिए उनको स्टैंड बाय में रखा गया है कि ही विल गेट एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, अभी आईपीएल में मैचेस खेलेंगे, उनकी फिटनेस का हमें समझ आएगा क्योंकि ही इज आउट ऑफ क्रिकेट फॉर लॉन्ग। दैट वाज द रीजन कि हम लोगों ने मतलब सूर्या इज डूइंग वेल, इज इन ए पर्पल पैच, लेकिन सुरेश अय्यर को हमने स्टैंड बाइज में रखा है। विशेष रॉय। हाँ, मेरा सवाल चेतन सर से है। मेरा सवाल ये सकता है कि कोई क्या कोई टेम्पटेशन थी कि नेक्स्ट टाइम टीम में चेतन से कार्या हो या फिर डी नटराजन को टीम में ड्राफ्टिंग करने के लिए? देखिए हर समय एक रहती है सेलेक्टर्स के दिमाग में कि एक आपके पास वेरिएशन होना चाहिए, बट एंड ऑफ द डे जहाँ पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विकेट्स का कंसर्न है, तो सेलेक्टर्स डिसाइडेड ऑन टू 3 फास्ट बॉलर्स विद हार्दिक पांड्या एज द 4th बॉलर। तो उसके अंदर अगर हम सोचते भी तो माइट भी हम फिक्स ना कर पाते किसी लेफ्ट हैंड तेज गेंदबाज को। एंड प्लस टी नटराजन की जरूर डिस्कशन हुई है, लेकिन ही हैजंट प्लेड क्रिकेट फॉर लॉन्ग और इंजरी लिस्ट में चल रहा है। दैट वाज द रीजन कि हम लोगों ने वी स्टिक टू द मेन गाइज जो आपके स्ट्राइक बॉलर्स हैं। just what is the presence of Kohli maybe to not go for a third opener because he could also fill in as one, or are you looking at Kohli as the opener? No, we have 3 openers. We have Rohit Sharma, we have KL Rahul, and then we got Ishan Kishan who can bat as an opener as well as he can be fit into middle order any time. तो वो एक तरह का बहुत अपॉर्चुनिटीज दे रहा है ईशान किशन हम लोगों को कि अगर ओपन की जरूरत पड़ती है ही विल ओपन, ही इज ऑलरेडी ओपन इन वनडे मैच, ही गॉट 50 इन द फर्स्ट गेम। तो वो मिडिल ऑर्डर में इज ए गुड प्लेयर ऑफ स्पिन, तो इसलिए 3 ओपनर्स हमारे सामने। एंड इफ नीड ऑफ द आर अगर मैनेजमेंट उसमें सोचती है कि विराट को ऊपर जाना चाहिए, दैट इज अप टू देम, बट इस समय आपके पास 3 ओपनर्स हैं। Are you looking at Virat? Virat had given a statement some time back that he would look at himself as an opener format. So did you all see that in mind? Why selecting the team? नहीं, हमने 3 सेलेक्टर्स 3 ओपनर्स हमने सेलेक्ट किए जैसे मैंने अभी बात की। देखिए विराट इज ए एसेट फॉर द टीम, एंड विराट अगर मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं तो वो टीम आसपास घूमती है विराट के। एंड विराट के अगर हम देखें जैसे T20 के अंदर ब्रिलियंट रिकॉर्ड्स हैं अगर हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं, बट फिर भी मैंने ये कहा कि उस समय परिस्थितियां कैसी होती हैं वो समय ही बताएगा। बट इस समय हमारे पास 3 ओपनर्स हैं जो रोहित शर्मा, KL राहुल एंड ईशान किशन।
Yes, Rajesh. चेतन जी, अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड बता सके जिस तरीके की सोच रही इस सिलेक्शन के पीछे, क्या राहुल द्रविड़ के लिए इनको किए गए तो टेस्ट सीरीज में वो थे, कुछ सीरीज में वरुण चक्रवर्ती वहाँ पे थे, उनको लेकर क्या सोच रही है और अश्विन की बात को किस तरीके से देखिए? देखिए, कहते हैं ना, अच्छी अगर आपको सोच मिल रही है तो किसी की भी सोच, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर द सेलेक्टर्स। और बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, लेजेंड्स, उनकी सोच अच्छी काम ही आती है आपके लिए। और जहाँ तक सवाल है वरुण का, ही इज बोल्ड रियली वेल विद इकॉनमी रेट ऑफ 5 पर ओवर इन श्रीलंका। मिस्ट्री बॉलर है, मतलब दुनिया को भी मालूम ही नहीं है कि व्हाट वरुण चक्रवर्ती इज। इट्स ए सरप्राइज पैकेज एक्चुअली। वरुण की अगर हम बात करें तो ये एक मेन रीजन था वरुण को टीम में लेने के लिए कि मिस्ट्री बॉलर है। More than my question is for Mr. Shah, if you can just time me a little. बिल्कुल है। तो मंडे आ जाए। रवि स्विच एंड देन यू गो ऑन। आज देखो सर, मेरा सवाल आपसे है कि तीन अगर हम देखें तो विकेट कीपर्स भी नजर आ रहे हैं, के राहुल भी है, ऋषभ पंत भी है, ईशान किशन भी है। ये भी सोचो दो ऑफ भी आपने रखे, अश्विन भी है, वरुण भी है। आप 3 विकेट कीपर्स की बात करें, देखिए नंबर 1 इज ऋषभ पंत, नंबर 2 इज ईशान किशन। अगर एज ए केएल राहुल अगर बहुत ज़रूरत पड़ती है तो तब इस्तेमाल टीम मैनेजमेंट करती है, अदरवाइज ही इज ए जेन्युइन ओपनर फॉर अस, फॉर द सेलेक्टर्स। और जहां तक आपने ऑफ स्पिनर की बात की, अश्विन इज द ओनली ऑफ स्पिन। वरुण तो बेसिकली लेग स्पिनर है, मिस्ट्री बॉलर है। वो कहते हैं ना, हमें अभी तक समझ नहीं आया तो बैट्समैन को क्या समझ आएगा। तो ऑफ स्पिनर हमारी टीम में एक ही है, वो रविचंद्र अश्विन। चेतन जी, हार्दिक पांड्या एज अ बैट्समैन खेलेंगे या ऑलराउंडर, आप उनको कंसिडर उनको किया है क्योंकि वो बॉलिंग तो बहुत ज्यादा करते नहीं रहे हैं इधर? नहीं, देखिए जो पिछले मैचेस आपने देखे हैं, हार्दिक पांड्या इज एब्सोल्युटली फिट एंड हर मैच में ही इज गोइंग टू बोल हिज कोटा ऑफ ओवर्स, देयर इज नो प्रॉब्लम। वहाँ हम थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहे थे, हम नहीं चाह रहे थे वर्ल्ड कप से पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाए, बट इज 100% फिट और हर मैच में ही इज गोइंग टू बोल हिज कोटा ऑफ ओवर्स। Rahul Rao interested there. Yeah, thank you very much. Chetan, I just wanted to ask you what went in favor of Ishan Kishan ahead of Shreyas Iyer? Was because he was injured for a while? Was that the reason? Because Ishan can keep wickets as well? Was that the reason? Or you can also use him as a floater? What is the reason for picking Ishan in the 16 ahead of Shreyas? ईशान किशन, देखिए दोनों प्लेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ईशान किशन की जैसे अभी आपने बात की कि फ्लोटर, वी कैन मेक हिम ओपन द इनिंग्स। मिडिल ऑर्डर में वो रेगुलर खेलते आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, ही प्लेज ब्रिलियंटली अगेंस्ट स्पिनर्स। और एक लेफ्ट हैंड ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके सामने लेग स्पिनर्स आएंगे दूसरी कंट्री के, एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो एक्सप्लोसिव बैट्समैन हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड श्रेयस डेफिनेटली हैज नॉट प्लेड क्रिकेट फॉर लॉन्ग, बट वी हैव कैप्टन इन द स्टैंड बाइज, तो इसलिए ईशान ने कट किया बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज। सर एक क्वेश्चन टेक्स्ट आया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इतने इन्फॉर्म क्रिकेटर्स में से 15 खिलाड़ियों की फाइनल चुनना कितना मुश्किल था, क्योंकि 22 खिलाड़ी कम से कम ऐसे थे जिन्होंने पिछले 12-14 महीनों में काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है, फ्रॉम कुंदन चक्रवर्ती, फ्रॉम एबीपी न्यूज। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जैसे इंडियन बेंच स्ट्रेंथ है हम सभी को मालूम है, ऑस्ट्रेलिया से लेके आज इंग्लैंड तक आपकी बेंच स्ट्रेंथ क्या है, जिसको आप मौका देते हैं ही परफॉर्म्स, एंड दैट इज गुड फॉर द सेलेक्टर्स, एंड गुड हेडेक्स आर ऑलवेज गुड फॉर द सेलेक्टर्स। तो हम लोग तो सेलेक्टर्स ये चाहेंगे कि आपके पास 20 की जगह 40 प्लेयर हों, अगर हमें उसमें से 15 चुनने पड़ेंगे तो कितनी अच्छी बात आपके लिए होगी। तो इट वॉज ए गुड फॉर सेलेक्टर्स, और जिनको भी सेलेक्ट किया है वी नो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू परफॉर्म। We'll have last couple of questions. Anshul Gupta. चेतन जी, मेरा सवाल शिखर धवन से बताना था। शिखर धवन का नाम डिस्कस हुआ था और क्या चर्चा हुई थी, और उनके नाम पे क्या बात हुई थी, और
सिर्फ 3 पेसर ले जाने का क्या कारण है? देखिए, शिखर धवन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस. ही वाज द कैप्टन इन श्रीलंका. अब क्या उसकी डिस्कशन हुई दैट आई कांट डिस्क्लोज, बट ही इज इंपॉर्टेंट. ही इज देयर इन लूप. मतलब इस समय नीड ऑफ द आवर इस समय ये था कि हम लोग किसी और प्लेयर की तरफ देखते और शिखर धवन को थोड़ा हम लोग रेस्ट देते. अदरवाइज ही इज ए इंपॉर्टेंट प्लेयर. ही विल बी बैक वेरी सून. और जहां तक पेसर्स का सवाल आपने पूछा, विकेट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया है कि जब आपके ऊपर विद ए चांस उन विकेट्स ऐसी होंगी, 2 ही फास्ट बॉलर खेलेंगे, देयर इज नो पॉइंट कि आप बाहर बिठाएं किसी को. उससे अच्छा तो यूटिलिटी प्लेयर टीम में डाल दें जो आपका कभी भी काम आए. जैसे स्पिनर्स आपके पास है, ऑलराउंडर्स आपके पास है. दैट वाज द रीजन, जस्ट लुकिंग एट द विकेट्स की ऐसी विकेट्स हमें यूएई में मिलेंगी.